सद्गुरु श्री मधुसूदन साई भारतर जड़े प्रमुख आध्यात्मिक नेता समाजसेवी और मानवतावादी जड़े अग्रदूत भावे परिचित। श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट माध्यम गरीब और वंचित लोक मागणा चिकित्सा सुविधा सहित शिशु स्वास्थ्य सेवा एवं हृदरोग चिकित्सा सेवा जोगाई दिया जाउछि। जाति धर्म और भाषार सीमा को अतिक्रम करी समस्त को प्रेम और एकतार संदेश देइथांती सद्गुरु श्री मधुसूदन साई। वसुधैव कुटुंबकम माने समग्र पृथ्वी गोटे परिवार, एही भावधारा को से जीवनर व्रत भावे ग्रहण करिसेंती। तो पहले तो ओटीवी के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत इजी नहीं है सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी के साथ बातचीत करना। जब मैं रिसर्च करा था मैंने देखा है बहुत सारा इंटरव्यूज नहीं है लेकिन कम है। तो ये हमारा सौभाग्य है आपको मंच पे पाके और आपके साथ ये बातचीत को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं टॉपिक पे आऊंगा लेकिन उससे पहले क्यूरोसिटी सबके अंदर है और क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो आपका दृष्टिकोण उसके ऊपर क्या है ये भी हम जानना चाहेंगे। बहुत एक वितर्क अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे हो या ऐसे भी हमारे समाज में कि सच में क्या भगवान है, डॉज गॉड एग्जिस्ट। ये एक बहुत बड़ा वितर्क है इसके ऊपर। और आजकल के जो जेनजीज हैं या फिर जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, 90s में जो लोग थे वो लोग लॉजिक ढूंढ रहे हैं इसमें। वो लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं लेकिन लॉजिकली सोचते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है और क्या आप उन तमाम जो युवक हैं युवतियां हैं उनको बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। Thank you for inviting me to be here to share this wonderful forum. Foresight wonderfully coined something that sees ahead of the times. So I think being here is a pleasure. Thank you, Ms. Jagi, for inviting me, and thank you everybody else, Mitaji and everybody who's here. This question of whether God exists and if he or she or whichever way, how does he or she exist? It's a question that has intrigued mankind from time immemorial. Since the times the sages sat in meditation and communion and tried to find answers, and most of these answers were found by them in a deep state of communion. It was not something that they could write it down in logic and rational, because by definition, if you go to the Upanishads, that is what I preach, by definition it says yato vacho nivartante aprapya manasa saha, which means that where the words become insufficient, nivartante, they return from there, the words return from there, and it's beyond the grasp of the mind. That is God. So by very definition, if you go by science, there has to be a definition to everything. So those who have experienced God, they said it's or he or she is that which cannot be described in words and which cannot be understood by the mind. So very definition, can logic apply to God? Obviously not, because the definition does not permit that. Then how do we experience whether such a thing exists, whether God exists, and what way it exists, or he exists or she exists, whatever be the debate. As the very definition I said, it's an experiential reality. It is not an experiment. It is not something that can be found by the senses empirically like science does. So the very first thing is that you have to start with believing that he or she, in whichever way it exists. Once you believe, then you get the understanding of how to experience that. And faith is the prerequisite. The cornerstone of philosophy is faith. So you don't see it, but you believe in it. And then you start experiencing the presence of that entity whom we call God. While India is quite diverse in terms of types of gods, we call Rama as God, Sri Krishna, Shivaji, Brahma, Vishnu, and goddesses also. A plethora of them, a whole lot of them. So which one is the real God is the question, and how does that fit this definition? The idea is that our scriptures define God as consciousness, prajnanam, Brahma. Brahma is the synonym for Godhood in the purest of its form. Brahma means Brihad, that which is vast, which is all pervasive, which is everywhere. So by definition, God should be all pervasive and everywhere. And that
that is the true definition according to us. But does it have a nature? If it's all pervasive, then it also gives the idea that it is Sat Chit Ananda is its nature. That experience of Godhood will give you the experience of truth, goodness, and bliss. And this awareness and bliss is the nature of the thing. So now you tell me, who is not capable of experiencing joy? All of us, from the animals to the highest philosophers, everybody experiences joys of different quality and different types. So are we experiencing Godhood? Yes, because we are capable of experiencing a kind of joy within our hearts. Two, are we aware of being the experiencers of anything, all the joys and sorrows and everything? Yes, we are. By second definition, it is awareness. So you are aware, I am sitting here, I am aware you are sitting there. The very fundamental idea of awareness is divinity, is what our scriptures say. And is it true at all times? Is it reproducible like a scientific experiment? Yes, it is. When I wake up, I am aware of everything. When I sleep, even though I don't remember I am sleeping, still my awareness does not diminish. I wake up and I remember who I am, even though in sleep I don't. So the very definition of truth, awareness and bliss is the nature of God. Now whoever experiences this is experiencing God in some way. That is how our scriptures would define. So I would appeal to the younger generation not to go by simply the Puranic definition of gods and goddesses who are mostly at war with each other or with the demons, but go into the philosophy of the Godhood. And Godhood is the idea of truth, Godhood is the idea of awareness, and Godhood is the idea of joy. So whoever experienced this through whatever source is in some way, in some measure experiencing God. तो अपने अपने हिसाब से आप लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि आंसर सबके God लिए fits all forms. The God is no particular shape. So yes, it's a shape of all things, as they say. जी जी जब श्री सत्यसाई बाबा शरीर में थे तब उन्होंने आध्यात्म को सेवा के साथ जोड़ा था और एक नया मार्ग प्रशस्त किया था. बिल्कुल उसी मार्ग पे आप अभी चल रहे हैं. जी. आजकल के इस जमाने में जहाँ कुछ भी छोटा सा चीज होता है उसका प्रचार प्रसार किया जाता है. आप छोटे बच्चों का हृदय का इलाज मुफ्त में करते हैं और हॉस्पिटल भी अभी शायद बन चुका है या बन रहा है. बहुत सारे हैं, लेकिन उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं है. जैसे मैं उड़ीसा से आता हूँ, बहुत लोग वहां पे इसके बारे में जानते नहीं हैं. ऐसा जानबूझ के किया जाता है डिलिबरेटली है या फिर इसके पीछे क्या सोच रहा है वो भी जानना चाहेंगे. और दो, सेवा और अध्यात्म दोनों चीज अलग अलग हैं या दोनों चीज एक ही पेड़ के दो शाखाएं हैं? बिल्कुल. आपने जिक्र किया सत्य साई बाबा जी का, जो हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने यही सिखाया है कि जो भी आध्यात्म है उसको सेवा के रूप में हमें लोगों तक पहुंचाना है. यदि हम किसी भगवान की आराधना करते हैं जो कहीं अप इन द हेवन, सिटिंग अप इन द हेवन, एंड इज ऑफ नो रेलेवेंस टू द पुअर एंड द मासेस, then such godhood or such religion and such philosophy is of no use. So उन्होंने कहा कि service and spirituality are two sides of the same coin. तो जैसे एक कॉइन के दोनों साइड होंगे तभी वो वैलिड होता है, वरना काउंटरफीट होता है. वैसे स्पिरिचुअलिटी में यदि सर्विस जुड़ी ना हो, that spirituality is counterfeit. And that is the idea that service and spirituality must go hand in hand. So we have been working in three fields of education, health and nutrition. Through nutrition we provide 1 crore children across 25 states morning meal every day, and that's the largest morning nutrition program any NGO has ever taken up. So also there are 15 hospitals, close to 2,000 beds across 7 states which are running for free, even abroad. And these are from pediatric heart surgeries to neuro, kidney and whatever you said. We have the free medical college too, which is India's one and the only free medical private college. And also we run a lot of healthcare facilities and educational institutions up to university. Why we did that? Because we felt that if you build a nation, you must build the people. And the people need these basic requirements. उनको खाना चाहिए पेट में, उनके मस्तिष्क में ज्ञान होना चाहिए और उनके हृदय में करुणा होनी चाहिए. ये नहीं रहेगी तो कोई राष्ट्र कभी सस्टेन नहीं कर सकता, हमेशा के लिए नहीं रह सकता. तो ये बाबा के सिखाए हुए सिद्धांत है जो हम पालन कर रहे हैं. और हमने इसका ज्यादा प्रचार प्रसार किया नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया काम ज्यादा बातें कम. Work speaks for itself. So we never made an effort to go out and publicize it. But हाँ, क्यों मैं यहाँ आया हूँ फिर? इसलिए कि आपके माध्यम से गरीबों तक ये बात पहुँचे, जरूरतमंदों तक, ताकि उनको पता चले कि ऐसी फैसिलिटीज है जहाँ पर वही सेवा पा सकते हैं निःशुल्क और यहाँ वहाँ ना भटके. तो इसीलिए अब हम थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन पहले तो एज ए सेड टॉक लेस वर्क मोर वाज द प्रिंसिपल. जी, जैसे कोई नेशन तभी बनेगा जब उसके लोग बनेंगे. आपने बोला कि लोग जो उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं
हेल्थ, एजुकेशन, नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, ये सारा चीज तो है, हमारा इकोनॉमी, ये सारे चीज के ऊपर तो ध्यान है, लेकिन कैरेक्टर बनाना, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, वो मैं जानना चाहूंगा हमारे देश को अभी आजकल ये हुआ क्या है, क्योंकि हम अगर सुइसाइडल टेंडेंसीज देखेंगे लोगों में बढ़ता चला जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी कमिट कर लेते हैं सुइसाइड। अभी एनसीआरबी का डेटा में देख रहा था तो वो कुछ लगभग सालाना 1,70,80,000 के कुछ उसके आसपास दिखा रहा है। ये बहुत चिंताजनक बात है। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि तलाक की हार भी बहुत, मतलब वो भी बढ़ता चला जा रहा है। लोग शादी में तो बहुत पैसा खर्चा करते हैं लेकिन 6 महीने साथ नहीं रह पाते, संपर्क भी टूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और कैरेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कहाँ पे हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं? हम मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होते चले जा रहे हैं क्या? आई थिंक बाय डेफिनेशन कैरेक्टर इज टू डू द राइट थिंग ऑलवेज। ये जब हमारे में सही करने की जो शक्ति और क्षमता होती है, धैर्य होता है, वही चरित्र है। तो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमें जो सही है वो करना है। और लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक तो उनके पास ऐसे एग्जाम्पल्स ही नहीं बचे हैं। यदि वो दूसरों को देखते हैं तो प्रेरित होते हैं बच्चे। वो अपने माँ बाप को देखें, टीचर्स को देखें या समाज में किसी को देखें तो उनको देखकर उनको कॉपी करते हैं बच्चे, वो देख के सीखते हैं। और इसकी वजह से आज ऐसे आइडियल्स को उनके सामने प्रस्तुत करना सबसे बड़ी जरूरत है। वो पेरेंटिंग हो या टीचिंग हो या फिर सोसाइटी हो, नेबरहुड हो, वहां पे ऐसे आइडियल्स होने चाहिए जो चरित्र के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। क्या हुआ है पिछले कुछ दशकों में, कॉल इट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, कॉल इट व्हाटएवर अदर वे, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, लोगों ने अपने चरित्र को मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और वो स्टोरीज ही ज्यादा फ्लोट करते हैं बजाय आइडियलिज्म की, क्योंकि नेगेटिव न्यूज सेल्स, उनको यही मिलता रहता है लगातार फीडबैक कि ऐसा होता है वैसा होता है। और कई लोग हैं जो गलत करके भी ऊपर उठ गए हैं समाज में। तो बच्चों के पास आइडियल्स नहीं बचे हैं, तो यदि हम उनके सामने राइट एग्जाम्पल्स नहीं प्रस्तुत करते हैं तो वो कैसे इंस्पायर होंगे? सो आई फील दैट इज द डेफिशिएंसी इन बिल्डिंग द कैरेक्टर, बिकॉज वी डोंट हैव राइट एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। दूसरी चीज, बच्चों में सुसाइडल और ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों ज्यादा बढ़ गई? क्योंकि वो खुश नहीं है। शादियां क्यों टूट रही है? क्योंकि व्यक्ति खुश नहीं है। शादी का दोष नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर में खुशी नहीं है। किस चीज की खुशी नहीं है? उसमें संतोष नहीं है, तृप्त नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, क्योंकि वो भागा चला जा रहा है। क्योंकि वो कुछ बोल रहा है और कुछ कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ बोल रहा है और कुछ कर रहा है। तीनों में एक वो क्या बोलते हैं, इंटेग्रिटी नहीं है। मतलब मैं, जैसे कई बच्चे हैं, मैंने देखा है, वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, पर उसके माता पिता ने बोला कि डॉक्टर ही बनोगे, कि हम भी डॉक्टर है, हमारे पुरखे भी डॉक्टर थे, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो पूरे हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। अब वो बच्चा संगीतकार बनना चाहता है या फिर स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, लेकिन दे आर पुश्ड इनटू दी स्ट्रेट जैकेट आइडियाज ऑफ यही होना है। तो वो बिना खुशी के वो दबाव में बढ़ता है, अंडर सम प्रेशर, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते एक एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड यूथ बन जाता है। और जब वो ऐसा बन जाता है, उसके अंदर ही संतोष नहीं, खुशी नहीं है, तो वो बाकियों को क्या देगा खुशी? और आज आप जाके देख लीजिए, कितने ही ऐसे लोग हैं हमारे देश में ही नहीं, अब्रॉड ऑल्सो हैव सीन मेंटल वेलनेस इश्यूज आर इवन मोर अब्रॉड देन हियर। देयर आर ईयर रूम्स फिल्ड विद 5-year-olds ट्राइंग टू हार्म देमसेल्व्स। वी आर स्टिल बेटर ऑफ। पर उसका कारण ये है कि वो जो करने चाहते हैं बच्चे, उनको वो करने की छूट नहीं मिलती है। माँ बाप बोलते यही करो, समाज बोलता है यही करो, यही सक्सेस है, पैसे मिलेंगे तभी सक्सेस है, ऊपर उठोगे, समाज में पावर है, पोजीशन है, तो ही सक्सेस है। सो द क्रिएटिविटी, द जॉय ऑफ डूइंग थिंग्स इज नॉट देयर इन देम। तो वो गुस्से में बड़े होते हैं, आक्रोश में बड़े होते हैं, और उनके अंदर जो है वही तो बाहर निकलेगा। तो जब अंदर ही खुशी नहीं है तो आप बाहर कैसे खुश रह सकते हैं? So I find it quite painful, and I always remind our children in our universities and schools, please do what you are born to do. And Krishna says in Bhagavad Gita, Swadharma, आप किस एक पर्पस के लिए आपका बर्थ हुआ है, you are born to do something. You are in media and journalism. That's your purpose. As long as you wake up with a winged heart and a spring in your step every morning, कि मंडे आ गया तो खुशी हो जाती है कि मंडे वापस आ गया, चलिए आज फिर से वो काम करेंगे जो संडे को नहीं कर पाए। उस खुशी से कितने लोग उठ रहे हैं भारत के अंदर, आप बताइए। जो उठ रहे हैं वही एक सवाल उनके तरफ से भी है। जो लोग काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, उनका घर परिवार का काम हो और वापस जाके दफ्तर में नौकरी करना हो, कोई व्यवसाय करता है,
जो लोगों की ये सोच है कि फॉर मी मनी इज एवरीथिंग बिकॉज आई हैव टू रन ए एंटायर फैमिली और उनको भी लुक आफ्टर करना है, उसके लिए पैसे तो चाहिए, मुझे पोजीशन भी चाहिए क्योंकि फिर मैंने कैरियर में क्या ग्रोथ किया, उन सब लोगों की जिंदगी में क्या स्पिरिचुअलिज्म आ सकता है और कैसे आएगा, रास्ता क्या है, और अध्यात्म क्या एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है चरित्र गठन में, जैसे आपने बोला। बिल्कुल। सी स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट मॉडरेशन। युक्ता आहार विहार से श्री कृष्ण से हर चीज में एक युक्तता होनी चाहिए, एक मॉडरेशन होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। यू मस्ट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन्स। आपको पैसे चाहिए, पोजीशन चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पर एट व्हाट प्राइस, कितनी कीमत आप उसके लिए चुकाने के लिए तैयार है। घर टूट जाए इतनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, आपके अंदर का आत्मविश्वास टूट जाए, आपकी गरिमा टूट जाए, उतनी हद तक जाने के लिए तैयार है क्या, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। सो स्पिरिचुअलिटी आंसर्स दिस। वो कहता है कि आपके अंदर की शांति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट यू है। आपकी मन की शांति बर्बाद हो गई, खराब हो गई, तो उसके बाद बाहर कुछ भी मिल जाए उसका आप आनंद नहीं उठा सकते। जैसे कि कोई बीमार आदमी के सामने आप कितना भी अच्छा खाना परोस दें, वो नहीं एंजॉय कर सकता है उस खाने को। तो वो समझ आध्यात्म से आती है कि कहाँ पर आपको वो लाइन ड्रॉ करना है। वो हर आदमी की अलग अलग सीमा होती है, पर जहां पर आपकी मन की शांति भ्रष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, वहां पे यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। तो rather live in limited means than to sacrifice your inner peace for the sake of these outer materialistic securities जो हम कहते हैं। क्योंकि इतने अमीर लोग हैं लेकिन खुश कहाँ हैं, सोते नहीं है, रात को पिल्स खा खा के सो रहे हैं। पर उतने मोटे गद्दे पे सोने का क्या मतलब जब नींद ही नहीं आ रही है। तो आपको कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मॉडरेशन इज नेसेसरी। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त का रोटी भी नहीं है, उनके लिए स्पिरिचुअलिज्म क्या मायने रखेगा। क्योंकि उनसे अगर हम मिलेंगे और हम पूछते हैं, माई सेल्फ बीइंग ए जर्नलिस्ट, बहुत लोगों से मैं मिला हूँ ग्राउंड में, तो उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए तो भाई 1 वक्त का मुझे रोटी मिल जाए वही मेरे लिए सब कुछ है, वही राम है, वही श्याम है, वो बोल लेते हैं। तो उनके जिंदगी में कैसे, मतलब नेशन बिल्डिंग में उनका क्या योगदान रहेगा। हम तो बोलने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स आके बोल लेते हैं, भाषण हो जाता है, लेकिन उनके लिए एक्चुअल में स्पिरिचुअलिज्म क्या मायने रखता है और वो कैसे बना सकते हैं हमारे देश को। जो पीड़ित है, वंचित है, एज स्वामी विवेकानंद सेज, आई डोंट बिलीव इन अ रिलीजन व्हिच कैन नॉट गिव मी 2 pieces ऑफ ब्रेड टुडे बट प्रॉमिसेस मी अ हेवन टुमारो। सो दैट इज हाउ इट इज फॉर देम। एज महात्मा गांधी जी ऑल्सो सेड, गॉड मस्ट अपीयर टू देम एज ब्रेड, एज क्लोथिंग, एज एजुकेशन, एज हेल्थ, एज बेसिक नेसेसिटीज। तो उनके लिए आध्यात्म और धर्म जो है, ये जो मूलभूत सुविधाओं से चालू होती है। उनके लिए रोटी के रूप में भगवान आएंगे, उनके लिए कपड़ों के रूप में भगवान आएंगे, उनके लिए खाने के रूप में या मदद के रूप में आएंगे। सो सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखना। ऑफकोर्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बट इट्स अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। वो एक बात है, पर उनके अंदर आध्यात्म कैसे जागृत होगा। चाहे भूखे मर जाए पर छीन के ना खाएं, वो भूखे मर जाए लेकिन किसी से चोरी ना करे, किसी को धोखा देके अपना जीवन चलाने की कोशिश वो लोग नहीं करेंगे यदि वो आध्यात्मिक है तो। थिंक ऑफ हरिश्चंद्र की कहानी है, isn't it? He gave up everything, including he did not even allow his wife to bury his son. बोला उसके लिए भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इस स्मशान में, हरिश्चंद्र घाट पे, और जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक मैं इसका क्रियाकर्म नहीं करूंगा। मतलब वो स्ट्रेंथ जो है, विल पावर, वो कैरेक्टर, वो आध्यात्म आपको देता है, जो सच्चाई उसके साथ अब जुड़े रहे। तो भले ही गरीब हो लेकिन धोखेबाज नहीं होंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, किसी और का बुरा नहीं करेंगे कितनी भी गरीबी में। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं उसमें, पर उनका सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है, खाने पीने, रहने, रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो वही उनके लिए पहला भगवान होगा। भूखे पेट को हम प्रवचन नहीं दे सकते, तो वो समाज की जिम्मेदारी नहीं होते। नहीं, वहां पे विश्वास की बात आती है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग जैसे मैं ये मानता हूं हमेशा कि आध्यात्म का जो पहला पड़ाव है वो विश्वास है, वहीं से शुरू होता है वो। लेकिन आजकल बहुत जगह पे विश्वास का व्यवसाय भी होता है, और वहीं जाके विश्वास और आस्था टूट भी जाता है कुछ दिन के बाद। जो व्यवसाय करते हैं वो ऐसे दिमाग है जो एक्चुअल में हमारे अंदर जो सोच है, हमारे समाज जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खा रहे हैं। तो कैसे रोका जाए उनको? जी बिल्कुल। आप जो मजबूर है, जो गरीब है, जो एक पीड़ित है, उसको विश्वास ही उसका सहारा है। उसके पास और कुछ नहीं, उसको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, कल आज से बेहतर होगा। और ऐसे में उसको विश्वास को बेचने वाले ट्रेडर्स ऑफ फेथ, दे आर देयर। वो उनका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पे या आध्यात्म के नाम पे भी उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो उनसे दूर रहना तो जरूरी है।
लेकिन कभी कभी उनकी समझ नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि जहां भी आपको अध्यात्म के अंदर पैसा घुसा हुआ दिखे, जहां पर व्यापार की संभावना, वहां से दूर रहे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्चेस हो, या फिर कोई भी आध्यात्मिक संगठन हो। जहां पर मनी एंटर्स, इट ब्रिंग्स करप्शन। तो ऑल द रिलीजियस लीडर्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस शुड स्टे क्लियर ऑफ मॉनिटरी एंड मनी रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल आइडियाज। तो वो आप देखिए, और उन संगठनों से, उन संस्थाओं से जुड़े जहां पर पैसे का दूसरों के लिए सहायता के लिए उपयोग कर सकते, लेकिन वो अपने आप में खुद को बढ़ाने के लिए नहीं करे। तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि आध्यात्म इज गिवन बाय गॉड। गॉड हैज गिवन एयर, वाटर, एवरीथिंग फ्री टू अस। हाउ कैन वी शेयर दैट नॉलेज और दैट फेथ एट अ प्राइस? तो जहां पर मुझे प्राइस टैग दिखता है, चाहे वो मंदिर के दर्शन की लाइन का हो, चाहे वो किसी गुरुजी के प्रवचन का हो, चाहे वो किसी और मठ या किसी संप्रदाय के कार्यक्रम का हो, तो मैं उनसे दूर रहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आध्यात्म में ये धन कैसे आ गया? वो तो आना ही नहीं चाहिए, तो भगवान सबके लिए है, सबके लिए समान है, बराबर है। तो यदि धन मिलता है तो उसे सेवा कर सके तो वो अलग बात है, लेकिन वो सोच बदल ली, क्योंकि लोगों की मजबूरी का फायदा उठा कि आप इतना दान करो, आपको उतना भगवान वापस देंगे। ये ट्रेडिंग ऑफ फेथ और इन रिलीजन इज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग। और होता है क्योंकि लोग मजबूर है ना, डर के मारे। जैसे डॉक्टर भी घबरा देते हैं पेशेंट्स को, अरे आप मर जाओगे, अभी के अभी इलाज कर लो, नहीं चाहिए तो भी उनका इलाज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डरे हुए हैं। तो जब लोग डरे होते हैं, वो सहमे होते हैं, तो उनका नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए आध्यात्मिक गुरुओं की और संस्थाओं की और मंदिरों की भी एक जवाबदारी है। ये जो रास्ता है बहुत आपके हिसाब से चलता है। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते पे चलना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपको दिखाए तो जाएंगे, बहुत चमचमाते हुए दिखेंगे भी, लेकिन आप अगर उसमें चलेंगे कुछ देर तो आपको लगेगा वो उसमें तो द एंड है। तो आपको इस हिसाब से अपना रास्ता खुद को मतलब आपको बनाना पड़ेगा, आपको खुद समझना भी पड़ेगा। जिस तरीके से बोले, चरित्र गठन बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट इट हम एक नेशन बिल्ड नहीं कर सकते। बाकी जितने भी पैरामीटर्स है वो तो बाद में आते हैं, पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। सदगुरु श्री मधुसूदन साई आज हमारे साथ थे। उनके जो पर्सपेक्टिव है बहुत हम लोगों को इंस्पायर करेगा, ये आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान अनुरोध करिबी एमडी मैडम जागे मंगत पंडा महोदय माननीय अतिथि को मंच रे सम्मानित करिबे। There is a small token of appreciation, sir, from our end. Thank you for your incredible speech and wonderful remarks. Thank you, Sunandan. बहुत बहुत धन्यवाद once again. Well, just take a second, because you talk about nation building. Thanks to her efforts and the efforts of Mr. Jay Panda, we are coming with a new hospital in Kendrapada in Odisha, which is free of charge, and construction is to begin soon. And there is some information available for those who are interested to know. So I just wanted to know, because we are talking about Odisha and developing Odisha, so I think free healthcare is a great way to start the work. This is the hospital. It's in the shape of a swastik. And I believe our healthcare should not be a cross but a swastik. Oh wow. So that is how the idea is. हम परंपरा, आमर मूल्यबोध को आधारित। बहुत बहुत धन्यवाद।